Hey guys, salam to everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Depends upon आप दिन के कौन से स्लॉट में मेरा ये छोटा सा वीडियो जो है देख रहे हैं. So guys, I hope you're all doing great and everything is fine. Today we are just going to have a very small session, maybe the session of 5 to 10 minutes actually. So what we are going to talk about today, you can see we are going to talk about the shot of the day, and इस shot of the day का जो बेसिकली डिस्कशन होगा वो रिवॉल्व करेगा एक काइनेमेटिक्स की एक ब्यूटीफुल प्रॉब्लम के अराउंड, जिसको हम नाम देते हैं ब्लिट एंड प्लैंक प्रॉब्लम का या प्लैंक एंड ब्लिट प्रॉब्लम का. Guys, to begin with, I want to tell you something very important. आज का जो डिस्कशन है बेसिकली इन द शॉट ऑफ द डे, ये एक्चुअली उन स्टूडेंट्स के लिए, उन एस्पायरेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जो है अभी तैयारी कर रहे, बी इट जेई बी इट नीट. सो आई वांट टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं, जनरली वी आर ऑफ द ओपिनियन कि हमें हर क्वेश्चन में जो है बेसिकली 1 मिनट मिलता है, 60 सेकेंड्स का टाइम या 70 सेकेंड्स का टाइम. बट आई वांट टू टेल यू दैट्स नॉट ट्रू. एक्चुअली आपके पास जो टाइम होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो होता है नॉट मोर देन 20 to 30 seconds. How is that? Because the moment you have a question in front of you, you need some time to read the question, understand the question, and then last में जब आप questions को solve करते हैं, then you need to keep on marking your OMR sheets. आपको वो rings बनाने पड़ते हैं. अगर आप उस time को subtract करें from the time of 60 or 70 seconds, then technically you are left only with 20 to 30 seconds. That means most of the questions जो आपको competitive examinations में मिलते हैं, उन particular questions को आपने 20 to 30 seconds में ही solve करना होगा. What happens actually sometimes now what we talk about जब हम preparation competitive examinations की करते हैं, तो एक चीज, एक term use की जाती है, trick. What is this trick? Is this trick a gota? Is this trick a mug up? Is this trick as doing something without understanding? No, that's not true. जब हम tricks की बात करते हैं, particularly physics में, यार इस question को ये shortcut trick है solve करने का, these tricks are very important, and this trick is not actually a trick. It's not a gota. What is it exactly? कभी-कभी हम क्या करते हैं actually, हम फिजिक्स की बहुत सारी इक्वेशंस को, 2 या 3 या 4 इक्वेशंस को हम इस तरह से जो है मैनिपुलेट करते हैं, मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं कि फाइनली हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा और प्रिसाइज सा एक एंड इक्वेशन मिलता है. और उस एंड इक्वेशन को जब आप यूज करते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ और मिनिमम पॉसिबल टाइम में जो है सॉल्व हो जाता है. So basically trick is not the gota. Trick is actually an additional effort जो आप लगाते हो equations को manipulate करने के लिए, ताकि आप एक particular question को जो है कम से कम टाइम में सॉल्व करें. I will give an example, right? Sometimes you move around, you go around, और आपको जो है एक mango shake पीने का जो है मन करता है. Then what happens? You know what is the composition of a mango shake? What you take is a little bit of milk. What you take is a little bit of mango, and then put some water maybe. And then use some flavor like sugar and something else. You put it in the mixer, mix it around, and ultimately जब आप ये सारे process को complete करते हो, you have a beautiful recipe in front of you. और वो beautiful recipe होती है actually a delicious recipe आपके सामने होती है. That is a mango shake, right? So that means you mix up certain things and get something beautiful. For me, that's what the trick means. You mix up a lot of equations or a lot of concepts, and you get something concrete that helps you in solving the questions in the minimum possible time. That introductory remark was important for me to make you understand that actually these tricks, these shortcut ways are sometimes very, very important when it comes to the competitive exams. So let's begin this session. What this session is all about. It's going to be a very brief session, but a good session that definitely is going to help you. ठीक. What we are talking about today is basically a problem called Planck and Blitt problem. ये कौन सी problem है? I am sure many of you out there would know exactly what kind of the problem I
am going to talk about. लेकिन उनके लिए जिनके दिमाग में ये टर्म डायरेक्टली नहीं बैठी यार, ब्लिट एंड प्लैंक प्रॉब्लम का क्या मतलब है, आई एम गोइंग टू गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ठीक है, ये प्रॉब्लम बाय द वे जो है मल्टीपल टाइम्स जो है एग्जामिनेशन में पूछी भी गई है. See what is the format of the problem. I'm going to first up explain the format of the problem. Problem में क्या दिया जाएगा, प्रॉब्लम में हमें कैलकुलेट क्या करना है. ठीक है, दिस प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट एक्चुअली अ ब्लिट, राइट, जिस ब्लिट की इनिशियल वेलोसिटी जो है आपको दी जाएगी. लेट्स अज्यूम दैट अ ब्लिट कम्स एंड लेट्स अज्यूम दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लिट इज u, right. This blade comes with the velocity of u and hits a plank. कौन सा प्लैंक, एक पट्टी, राइट. कौन सी पट्टी, इट मे बी वुडन, इट मे बी प्लास्टिक और इट मे बी एनी अदर सॉलिड स्ट्रक्चर, राइट. लेट्स अज्यूम दैट इट इज अ वुडन प्लैंक. द ब्लेड जो है इट कम्स विद द वेलोसिटी ऑफ u, enters or penetrates this particular wooden plank, right. जो ही enter करेगी obviously it will face some resistance, right. The moment it penetrates थोड़ी सी resistance आती है, resistance की वजह से जो है ये blade energy lose करेगी, speed जो है कम होगी, and the moment this blade जो ही ये blade next end पे पहुंच जाती है, right face पे पहुंच जाती है, obviously we understand that its velocity is going to be lesser because it goes through the retardation, and let's assume that velocity is now v. It's very easy to understand, v is less than u because blade has lost kinetic energy, blade has lost its speed. Done. Now in this particular case अब क्वेश्चन क्या पूछेगा. यूजुअली ये इनिशियल वेलोसिटी आपको दी जाती है जो वेलोसिटी ब्लेड की थी एज इट हिट द वुडन प्लैंक, और जो ही ये वुडन प्लैंक से बाहर आती है लेट्स अज्यूम दैट इट इज वेलोसिटी इज v. अब क्वेश्चन आपको ये पूछेगा, कभी कभी इस प्लैंक की विड्थ जो है दी जाएगी, लेट्स अज्यूम दैट x नॉट जो है दैट इज फॉर एग्जांपल द विड्थ ऑफ दिस प्लैंक. सो जो ही ब्लेड इस x नॉट को ट्रैवल करती है, राइट, आपकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है फ्रॉम u टू v. अब क्वेश्चन आपको ये पूछेगा, फाइंड द नंबर ऑफ प्लैंक्स, ये बताओ कि कितने प्लैंक्स हमें ऐसे ही और लगाने पड़ेंगे ताकि हम इस ब्लेड को जो है स्टॉप कर सके. फॉर एग्जांपल अगर ब्लेड की स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड, प्लैंक को जो ही ये क्रॉस करती है, एक प्लैंक को, मान लीजिए इसकी स्पीड रिड्यूस हो गई फ्रॉम 100 मीटर पर सेकेंड टू 90 मीटर पर सेकेंड, राइट. अब एक ब्लेड जब पेनिट्रेट करती है इस पर्टिकुलर प्लैंक को, स्पीड रिड्यूसेस फ्रॉम 100 टू 90 मीटर पर सेकेंड, राइट. अब हमें ये बताना है कि कितने प्लैंक्स हमें और ऐड करने पड़ेंगे ताकि ये ब्लेड जो है फाइनली जो है रेस्ट में आ जाए. That is actually the question. So I'm just going to give a beautiful way to deal with this particular problem so that आप इस particular problem को within 10 seconds जो है solve करें. ये problem जिस भी format में, जिस भी data के साथ पूछी जाएगी, आप इस problem को जो है hit कर सकते हो, kill कर सकते हो, demolish कर सकते हो, destroy कर सकते हो inside the 10 seconds. Let's try to see how do we calculate the number of planks. अगर इस particular problem में आपको total number of planks इवैल्यूएट करना है जो चाहिए ब्लेड को स्टॉप करने के लिए, सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे, आप जो एक फैक्टर डिफाइन करेंगे बीटा, राइट. ये बीटा जो है इट्स अ फैक्टर दैट इज द रेशियो ऑफ फाइनल वेलोसिटी टू इनिशियल वेलोसिटी. बाय द वे गाइस मैं यहां पे और भी एक चीज ऐड करता चलूं, वो ये है, हमारा assumption ये है कि जब ये ब्लेड पेनिट्रेट करती है इस वुडन प्लैंक को, तो एक्चुअली ब्लेड जो है इट विल फेस रिटार्डेशन, स्पीड विल स्लो डाउन. लेकिन हमारा assumption ये है यहां पे जितनी भी रिटार्डेशन होगी कम या ज्यादा, दैट रिटार्डेशन विल बी कांस्टेंट, राइट. मान लीजिए रिटार्डेशन आती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, whatever is the value, that value is going to remain constant, right. This value we assume to be constant. ठीक, done. So मैंने कहा सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे, what you are just going to do, आप सबसे पहले define करेंगे बीटा, एक factor which is a ratio of final velocity of the blade to
टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लेड जब ब्लेड एक प्लैंक को क्रॉस करती है। अगर ये बीटा आपको पता है, नो अब आपको क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स दैट वी नीड टू स्टॉप द ब्लड। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स विल सिंपली बी गिवन बाय 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर। दैट्स इट. That's it, guys. That's it. Right? If you know this beta ratio of final to initial velocity, then the total number of planks required to stop the blade को रोकने के लिए जो आपको total number of planks चाहिए, that will be 1/1 minus beta square. Sir, where from you got it? अरे यार, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ kinematical equations को just like the mango juice mix up किया और आपको मिली एक beautiful recipe जिसकी मदद से आप इस प्रॉब्लम को within 10 seconds जो है सॉल्व कर सकते हो। ये पहला पॉइंट। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, there's a one more thing that I want to add here, right? कभी कभी क्वेश्चन में जो है ये ऐसा भी क्वेश्चन का फॉर्मेट हो सकता है, right? Let me remove it. Let me use some beautiful tools that this particular technology gives me. तो ये मान लीजिए आपका प्लैंक है। ठीक है, इस प्लैंक के केस में जो है लेट्स अज्यूम दैट इस प्लैंक की थिकनेस जो है हमें दी गई है x0, राइट? अगेन सपोज द इनिशियल वेलोसिटी इज u जब ब्लेड एंटर करी इस प्लैंक को, और इस प्लैंक के थ्रू ट्रैवल करने के बाद लेट्स अज्यूम दैट फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड जब ये इस पूरी प्लैंक की डिस्टेंस को ट्रैवल करती है इट इज v। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इस प्लैंक की थिकनेस आपको दी जाती है। सपोज आपको दिया गया है प्लैंक की जो थिकनेस है, द थिकनेस ऑफ द प्लैंक इज फॉर एग्जांपल 15 सेंटीमीटर्स, यानी ब्लेड जब इस प्लैंक की थिकनेस के थ्रू ट्रैवल करती है इट्स वेलोसिटी रिड्यूसेस फ्रॉम u to v और थिकनेस ऑफ द प्लैंक कितना था? इट वाज 15 सेंटीमीटर्स। अब कभी कभी आपको नंबर ऑफ प्लैंक्स नहीं पूछा जाता है, कभी कभी आपको पूछा जाता है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द ब्लेड विल कवर बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। ये बताओ कि ब्लेड ने 15 सेंटीमीटर जब कवर किए, वेलोसिटी रिड्यूस हुई फ्रॉम u टू v। अब ये बताओ कि टोटल डिस्टेंस ब्लेड को कितना कवर करना होगा बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। अगर मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए, what is the total distance or the total displacement covered by the blade before it comes to the rest, then it will be again 1/1 minus beta square, the similar thing जो हमने number of planks के लिए यूज किया था, multiplied by thickness of this particular plank। यानी 1/1 minus beta square का जो फैक्टर है इसको आपने simply multiply करना है with what? With the thickness of the plank, राइट? एंड मैं आपको ये बता दूं, ये टोटल डिस्टेंस है विच द ब्लेड विल कवर बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, और ये डिस्टेंस वो जो एक प्लैंक की थिकनेस थी। ठीक है, अगर आप इस टोटल डिस्टेंस को थिकनेस ऑफ प्लैंक से, टोटल डिस्टेंस को थिकनेस ऑफ प्लैंक से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ प्लैंक्स विच इज इक्वल टू 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर। That's it. आपको टोटल डिस्टेंस कवर करनी, कैलकुलेट करनी है विच द ब्लेड विल कवर बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, राइट? या फिर आपको नंबर ऑफ प्लैंक्स कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ प्लैंक्स कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ ये वाला फैक्टर, अगर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लेड कैलकुलेट करनी है बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, देन आप सिंपली इस फैक्टर को x0 थिकनेस ऑफ प्लैंक से जो है मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स हैव द quick look at the two examples जिससे आपको एक better idea मिल जाएगा। मैं दो क्विक एग्जांपल्स यहां पे जो है within 2 minutes जो है आपके साथ डिस्कस करूंगा so that you will get an idea. Then I will talk about a question that was recently asked in the NEET as well and we will see that उस क्वेश्चन को किस तरह से स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया होगा। I don't know, I'm not sure, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा there is a way that उस क्वेश्चन को आप within 10 seconds सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दो क्वेश्चंस को डिजाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है that is basically क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज बेसिकली एक ब्लेड आ रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लेड की वेलोसिटी थी u while it penetrates a plank, एक प्लैंक को ये पेनिट्रेट करती है। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लेड loses
10% of velocity, right? While crossing a plank, ब्लेड की इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए, इनकमिंग वेलोसिटी मान लीजिए u है. While it penetrates one plank, तो बेसिकली ये ब्लेड जो है लूज करती है 10% of velocity. 10% लूज किया गाइस. इसका मतलब ये हुआ कि नई जो वेलोसिटी है इट विल बी लेफ्ट विद द 90% ऑफ द वेलोसिटी. जो इनिशियल थी उसका 90% इसके बाद रहेगा. क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ प्लैंक्स. ये बताओ कि कितने प्लैंक्स चाहिए इस ब्लेड को स्टॉप करने के लिए. एक प्लैंक को क्रॉस किया, 10% वेलोसिटी लूज हो गई, तो कितने प्लैंक्स चाहिए ब्लेड को स्टॉप करने के लिए, राइट? कभी कभी दिमाग ये कहता है शायद, राइट, एक प्लैंक के थ्रू जाने पे 10% वेलोसिटी लूज हो गई, तो शायद 10 प्लैंक्स चाहिए होंगे ताकि 10% लूज करके फाइनली ब्लेड की वेलोसिटी बन जाए 0. नो गाइस, दैट्स नॉट द केस. लेट्स सी, वी कैन डू इट इन वन शॉट. सबसे पहले हम यहां पे define करेंगे बीटा. बीटा is the final velocity upon initial velocity when it comes to a single plank, right? Enter कर गया u से, निकल रहा है एक प्लैंक को पेनिट्रेट करने के बाद विद द स्पीड ऑफ v, तो इनका रेशियो हो गया बीटा. यू नो v का वैल्यू जो है 0.9 u है और नीचे u है. u एंड u विल गो. गाइस, बीटा का वैल्यू जो है 0.9 आ गया. कैलकुलेट क्या करना है? नंबर ऑफ प्लैंक्स. तो नंबर ऑफ प्लैंक्स कैलकुलेट करते हैं. क्या एक्सप्रेशन है हमारी? 1/1 minus beta square. Put it here, 1/1 minus, it is beta is 0.9, लेकिन उसका स्क्वायर लेना है. That will be 0.81. This will be 1/0.19. 1 minus 0.01. ये फैक्टर गाइस 1/0.19. It will approximately be 5.25. Approximately be 5.25. To be precise, maybe 5.26 होगा. यानी नंबर ऑफ प्लैंक्स जो हमें चाहिए ब्लेड को स्टॉप करने के लिए, इट इज 5.25. व्हाट डज इट मीन? इट्स नॉट एन इंटीजर. इट मींस 5 प्लैंक्स तो कंफर्म चाहिए और छठी प्लैंक का थोड़ा सा हिस्सा चाहिए, which actually means that you need 6 planks. I hope that you understand it. 5.25 प्लैंक्स हमें चाहिए, यानी 5 प्लैंक्स और छठे प्लैंक का कुछ हिस्सा, यानी 6th प्लैंक हैज टू बी इन प्लेस, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा हमें चाहिए होगा ब्लेड को परमानेंटली स्टॉप करने के लिए. व्हिच मींस दैट द नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड हियर गाइस इज इक्वल टू 6. The procedure is not important, answer is not important. What is important is that the crispness of this particular solution, the way you handle this problem. ठीक है? This is the example number 1. I hope you will be really enjoying it because this is a great thing in your armory, जिसकी मदद से इस पैटर्न की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं. And then I come to a one more example. जिस पैटर्न की एग्जाम्पल आपकी रीसेंट नीट में मे बी कपल ऑफ इयर्स बैक जो है पूछी गई थी. लेट मी एग्जैक्टली टॉक अबाउट दैट प्रॉब्लम. मे बी डेटा मेरा वो नहीं होगा, बट एग्जैक्टली मैं उसी पैटर्न की प्रॉब्लम की बात करूंगा जिस पैटर्न की प्रॉब्लम आपको पूछी गई थी. अंडरस्टैंड द नेक्स्ट केस. नेक्स्ट केस ये है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्लेड आ रही है, इसकी स्पीड है u. while it travels through a wooden plank, ठीक है, थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर्स. ये एक वुडन प्लैंक के थ्रू मूव कर रही है थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर्स. एंड व्हाइल दिस ब्लेड ट्रैवल्स थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर्स, इसकी वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है बाय 50%. यानी 50% से इसकी वेलोसिटी कम होती है, विच टेक्निकली गाइज मीन दैट हाफ वेलोसिटी ये लूज करता है, हाफ स्पीड ये लूज करता है, और हाफ स्पीड जो है इस पर्टिकुलर ब्लेड के पास रहती है व्हेन इट ट्रैवल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर्स. इसका मतलब ये हुआ कि अगर 50% स्पीड लूज कर गया, इसके पास जो वेलोसिटी होगी 50% होगी, यानी हाफ ऑफ द इनिशियल होगी. डन. विच टेक्निकली मीन्स दैट यू अगेन नो द इनिशियल वेलोसिटी, which technically means that you again know the final velocity after it travels a distance of 15 centimeters. What did the question ask? Question ने क्या पूछा? नीट. Question ने ये पूछा कि ये बताओ कि कितनी additional
ध्यान से सुनना, कितनी एडिशनल डिस्टेंस और ब्लेड को ट्रैवल करनी पड़ेगी? 15 सेंटीमीटर ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है, और एडिशनल कितनी डिस्टेंस इस ब्लेड को ट्रैवल करनी पड़ेगी बिफोर दिस ब्लेड कम्स टू रेस्ट? What I'm just going to do, मैं ये देखूंगा इस ये ब्लेड जो है टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करना चाहिए, या कितनी टोटल डिस्टेंस ये ब्लेड कवर करेगी बिफोर इट कम्स टू रेस्ट. मैं टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा दैट द ब्लेड विल ट्रैवल बिफोर इट कम्स टू रेस्ट. अगर मुझे टोटल डिस्टेंस पता चला, ऑलरेडी उस टोटल डिस्टेंस में से 15 कवर कर चुका है, तो मुझे एडिशनल डिस्टेंस मिल जाएगी. हाउ डू आई नो, हाउ डू आई कैलकुलेट, हाउ डू आई वर्क आउट द टोटल डिस्टेंस दैट इज टू बी कवर्ड बाय द ब्लेड before it comes to rest? I have a simple magical way, right? The total distance covered is given by 1 upon 1 minus beta square multiplied with the distance that it has already traveled. जिस डिस्टेंस को ट्रैवल करने पे इसकी वेलोसिटी चेंज या रिड्यूस हुई फ्रॉम u to v. I have to only calculate beta, guys. ठीक है? So let me change a color here. Let me do the beta here. Beta is final velocity upon initial velocity. Final is 0.u, half of initial upon the initial velocity. So beta की value आपकी 0.5 आ रही है. Put it here. The x comes out to be equal to 1 upon 1 minus beta squared. Right? Beta is 0.5. इसका स्क्वायर लेंगे तो 0.25 हो जाएगा, multiplied by the distance already traveled, that's 15. तो यहां पे 15 सेंटीमीटर्स आ गया. ठीक है? This comes out to be 15 divided by 0.75. That is equal to 0.75 multiplied by 10, that is 7.5. Right? You can do the calculation, I'm sure, and this will come out to be equal to 20 centimeters. What is this 20 centimeters? ये वो total distance है जो ब्लेड को ट्रैवल करनी पड़ेगी before it comes to rest. ब्लेड को total distance कवर करनी है 20 centimeters. जो ही ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, ब्लेड will come to rest. ऑलरेडी कितना कर चुका है? 15 centimeters. Total कितना कवर करना है? 20 centimeters. What is the additional distance it has to travel, guys? The additional distance x prime is equal to total distance minus already covered 15 centimeters. That's equal to 5 centimeters. That's the answer. This is your final answer. The crispness of the solution makes you confident to deal with these kind of the problems. Ladies and gentlemen, short of the day for you from a problem called Blatt-Planck problem. God bless you all. Keep working hard. Thank you so much.